syllabus. Let's quickly see how these lipids they are represented and what is the nomenclature that is used to call out these lipids. Okay, so अगर आप representation देखेंगे तो 2-dimensional representation होता है. इसमें can you see this कि कार्बन और जितने भी हाइड्रोजन बाउंड है, राइट, या पूरा दिखा देता है, like the way I was showing. There is another representation. यहाँ पे जो हाइड्रोजन को लिखते नहीं है, but it is understood कि ये जो कार्बन है दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, because it is the central carbon या बीच का कार्बन है ना हाइड्रोकार्बन चेन, right? Another way of writing is कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक ही साइड में लिख दिया, हर कार्बन दो हाइड्रोजन एटम से. So this is a kind of a 3-dimensional structure. And there is another nomenclature जहाँ पे दिखते ही नहीं है कि जो भी corners हैं, ठीक है, एक there is a straight line and then there is a bend. तो जो भी corners हैं, each corner represents one carbon atom, and because it's a central carbon atom, it will be bound with 2 hydrogen atoms. तो ये understood है, it is not told. So ठीक है, इसमें represent नहीं करते. So this is another 3-dimensional representation of how we can write lipids या fatty acids को represent कर सकते हैं. If there is a double bond, तो double bond लिखते हैं, and if there is a cis double bond, तो it's written like this. और अगर trans होगा तो same direction में आगे बढ़ता चला जाता है after a double bond. So this is a 3-dimensional way of representing lipids, which you will see, which you will come across in your textbooks. So don't get confused. So इसमें कोई question तो नहीं है किसी को? I think it's fairly simple and clearly mentioned over here. So how we name these fatty acids? So generally जो हम fatty acid को name करते हैं, it's in the form like the name is very similar to the number of carbon atoms that are present in a hydrocarbon chain. तो जैसे C18 fatty acid है तो उसको हम बोलते हैं octadecanoic acid. Why it is called as octadecanoic acid? Because C18, तो अगर आप रोमन में अगर आप उसको लिखेंगे 18 को, so that is called as octadecanoic acid. ठीक है, so या octadecane, ठीक है, because जो 18 कार्बन की चेन होती है उसको हम बोलते हैं octadecane बोलते हैं. तो अगर ये फैटी एसिड है तो उसको हम बोलेंगे octadecanoic acid. Okay, it is based, जो इसका nomenclature है, it is based on the number of carbon which are present in the hydrocarbon chain. Octadecane is a term used for 18 carbons. Okay, if it is a fatty acid, then it is called as octadecanoic acid. तो अगर octadecanoic acid में या C18 fatty acid में there is a single double bond, then it is called as octadecanoic acid. Okay, अगर 2 double bonds हैं, then it is called as octadecadienoic acid. अगर 3 हैं तो octadecatrienoic acid. But they are also called by their specific name also. तो जैसे C18 का जो कार्बन चेन है उसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? फेरिक एसिड. फेरिक एसिड बोलते हैं, राइट. अगर इसमें एक डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे ओलिक एसिड. ओके, so likewise there are other names also, but this is another way to represent these fatty acids. ठीक है, so on the basis of positioning also हम fatty acid chain को label करते हैं. तो एक पोजीशनिंग होती है 1 2 3 4. ओके, सो दिस इज अगर कोई भी फैटी एसिड चेन होगी, जैसे हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसके हमने बताया था ऑन वन एंड देयर इज अ एसिड ग्रुप. तो जहां एसिड ग्रुप है दैट कार्बन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट कार्बन. उसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे सेकंड कार्बन, उसके बगल वाले को थर्ड कार्बन बोलेंगे. एंड लाइक दिस वे वी कैन नेम द कार्बन एटम्स इन अ फैटी एसिड चेन. There is another nomenclature जहाँ पे हम अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन या ओमेगा कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं in a fatty acids. What is the alpha carbon? Alpha carbon is the first carbon that is present in the fatty acids chain after your acid group. अगर आप acid group के बाद जो first carbon attached है, that is called as alpha carbon. और अगर आप 1 2 3 जो लेवल है उससे अगर आप लेवल करेंगे, that means the second carbon को हम जो बोलते हैं that is called as the alpha carbon, right? थर्ड कार्बन को हम बोलेंगे बीटा कार्बन, फोर्थ कार्बन को हम बोलेंगे गामा कार्बन, और जो लास्ट कार्बन होता है इन अ फैटी एसिड चेन उसको हम क्या बोलते हैं? We always call it as omega. So there is one representation of a fatty acid over here. This is the first carbon, this is the second carbon. तो ये second carbon को हम क्या बोलते हैं? This is alpha carbon.
थर्ड कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन, और जो लास्ट फैटी जो कार्बन है एक फैटी एसिड चेन में, राइट। सो दिस विल बी कॉल्ड, अगर मान लो ये पैल्मेटिक एसिड है तो दिस इज योर फर्स्ट, जो COH ग्रुप है ये फर्स्ट कार्बन हो गया, और जो 16th कार्बन है इन अ पैल्मेटिक एसिड दैट इज कॉल्ड एज योर ओमेगा कार्बन। समझ में आया? सो अगर हम, हैव यू हर्ड अबाउट ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स? Yes, sir. तो वहां पे हम डबल बॉन्ड को लेबल करते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ कार्बन चेन, राइट, एंड से हम लेबल करना स्टार्ट करते हैं। सो सेम थिंग इट्स मेंशन्ड ओवर हियर। तो जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड का मतलब हो गया कि अगर आप ओमेगा पोजीशन से थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में देयर इज अ डबल बॉन्ड, सो देन इट इज कॉल्ड एज ओमेगा 3 डबल बॉन्ड। कैन यू सी इट? ये क्या है, लास्ट कार्बन है, ये उससे पहले वाला कार्बन है, ये उससे पहले वाला कार्बन, 1 2 थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है देन इट इज कॉल्ड एज ओमेगा 3 फैटी एसिड, बिकॉज इट इज ओमेगा। ओमेगा मतलब क्या होगा, लास्ट कार्बन से आपको नेमिंग स्टार्ट करनी है या काउंटिंग आपको स्टार्ट करनी है, राइट? इज इट क्लियर? यस सर। तो फैटी एसिड्स और ये जो डबल बॉन्ड होते हैं फैटी एसिड में, दे आर जनरली डिनोटेड बाय डेल्टा। तो अगर मान लो कहीं पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है डेल्टा 9 फैटी एसिड, इट मीन्स कि देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन 9th एंड 10th कार्बन, और 9th एंड 10th आपको मेजर करना है या आपको काउंट करना है फ्रॉम योर एसिड ग्रुप, राइट? एसिड ग्रुप से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे, और डेल्टा 9 फैटी एसिड है, दैट मीन्स देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन 9th एंड 10th कार्बन स्टार्टिंग फ्रॉम योर एसिड ग्रुप। इज इट क्लियर? यस सर। और अगर मान लो ओमेगा 3, ओमेगा से लिखा हुआ ओमेगा 3 या ओमेगा 6, देन यू हैव टू काउंट, स्टार्ट टू काउंट फ्रॉम द लास्ट कार्बन। दैट मींस कि नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द एसिड ग्रुप बट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ योर फैटी एसिड, वहां से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, बिकॉज ओमेगा रिप्रेजेंट्स द लास्ट कार्बन इन द फैटी एसिड चेन। ठीक है? तो अगर ओमेगा 3 है, दैट मींस इट इज बिटवीन द third and fourth carbon starting from the omega carbon. Okay, again this is very important. Another way to represent double bond is agar C18 0 likha hai, that means there is no double bond, so you can simply say that it's a stearic acid, or you can say that it is a octadecanoic acid. Okay, but agar 18:1 likha hai, that means कि there is one double bond, but 18:1 में पोजीशन और डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देती है, ये नहीं पता कि हमें किस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। सो इफ यू वांट टू शो कि किस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, देन यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस डेल्टा 9 और इस टाइप से टर्मिनोलॉजी ऐड करिए। अगर 18:2 लिखा है, दैट मींस हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन 18? 2 डबल बॉन्ड्स। ओके, राइट? सो दिस इज हाउ देयर आर, like this is the most common like representation you might have already studied in your biomolecule, but it is just a revisit that I wanted to make over here, क्योंकि आगे कुछ कुछ इस तरीके से आएगा, तो I don't want कि आप कंफ्यूज हो जाए या आप विजुअलाइज नहीं कर पाए कि किस टाइप के डबल बॉन्ड्स हैं। ओके, एंड this table we have already like seen in the previous slides, but these are some naturally occurring fatty acids in animals. So these are most common types. Okay, laurate हो गया आपका 12 carbon, so there are no double bond. Myristate, palmitate, stearate, arachidate, behanate, right? And you can see कि there are some long chain fatty acid also. 14 carbon का है, lignoserate बोलते हैं सर, right? But if there are double bonds, then there is like slight modification in how we name it. अगर 16 carbon का fatty acid है, if there is no double bond, we call it as palmitate. But if there is one double bond, then it is called as palmitoylate. Okay, 18 carbon है, if there is no double bond, it is called as stearate. Yes, stearic acid. Okay, if there is a single double bond, then it is called as olate. If there are two double bonds in a 18 carbon fatty acid, then it is called as linolenate. If there are three, lineate बोलते हैं। Okay, linolenate. Okay, अगर 2 कार्बन होता है तो लाइनोलिएट। अगर 20 कार्बन का है, उसमें 4 डबल बॉन्ड्स है, देन इट्स कॉल्ड एज एराचिडोनेट, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर आइकोसानोइड्स।
जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ये सब सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट दिस? थ्रोम्बोक्सिन्स, very important Yes, sir. molecules for blood clotting, and so these are all signaling molecules which are of lot of relevance. Okay, so जैसे मैंने आपको और पहले भी बताया था कि here we are not discussing, so most of these fatty acids that we are discussing, they are all even chain fatty acids. Some of you might be thinking why there are no odd chain fatty acids. There are few, but we'll not discuss about them over here. We'll discuss about them when we are actually studying how we can synthesize these fatty acids. So at present you should know that most of the fatty acids which are present in the biological systems, they are all even chain fatty acid. And why they are mostly even chain? Because the starting material is your acetyl CoA, which is the 2-carbon fatty acids. Whenever these fatty acids they are synthesized. Okay? And another thing which was of another important feature is कि ये जो fatty acids होते हैं, they are not branched. ऐसे नहीं है कि they are just single hydrocarbon chain. ऐसे नहीं है कि बीच में कुछ branching नहीं, right? So most of them, but there are exceptions over here. So we'll talk about that later on. But as a general rule, you can say that most of the fatty acids, they are unbranched fatty acids. Okay, so जो फैटी एसिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंडेंट होती है उनकी चेन लेंथ पे, एंड दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स दैट दे आर प्रेजेंट इन. सो जस्ट इमेजिन करिए कि एक स्टेरिक एसिड जो कि 18 कार्बन का होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 69.6 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है इफ देयर इज नो डबल बॉन्ड. जैसे ही इसमें एक डबल बॉन्ड इसमें लगाएंगे, यू कन्वर्ट अ स्टेरिक एसिड इनटू ओलिक एसिड, तो यहाँ पे जो ओलिक एसिड बनता है ये डेल्टा 9 पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है. दैट मींस 9th और 10th कार्बन के बीच में जैसे ही आप स्टेरिक एसिड में एक डबल बॉन्ड डालेंगे, तो लुक एट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट इट कम्स डाउन टू 13.4 डिग्री सेंटीग्रेड. तो कैन यू सी, इमेजिन हाउ द मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस. सिर्फ एक डबल बॉन्ड से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 69.6 से 13.4 पे आके. सो अगर ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, मतलब 2 या उससे ज्यादा अगर डबल बॉन्ड होते हैं, यू कैन इमेजिन कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा विल बी इवन लोअर. सिमिलरली जो 16 कार्बन का पैल्मेटिक एसिड है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा एज कंपेयर टू 18 कार्बन फैटी एसिड, राइट. सो अगर आप एक्चुअल में डिफरेंस देखेंगे पैल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड के जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है पैल्मेटिक एसिड में एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्टेरिक एसिड. ठीक है, तो जितना छोटी चेन होती जाएगी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उतना ही कम होता चला जाएगा. जितनी ही बड़ी चेन होती चली जाएगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही बड़ा होता चला जाएगा. राइट, इज इट क्लियर? Yes. So these are like some of the properties of fatty acid, जो कि आपका it is just again an overview of what you have already learned when you studied about lipids. And अभी तक जो आपने पढ़ा at least ये expect किया जाएगा कि आपको इतनी चीजें अच्छे से आती रहेंगी before we actually study how study the metabolism of lipids. Okay, so next